Hello everyone, welcome to my YouTube channel VC Sir की class. Today we will in Daily Dose of Chemistry episode number 15. So firstly I hope you all will be safe, healthy and happy. So today's we will going to discuss about application of resonance, very important topic related with general organic chemistry for NEET, IIT and 11th and 12th aspirants also. So today's topic is compounds are aromatic, anti-aromatic and non-aromatic. So three possible variety in cyclostructures according to nature of resonance and number of pi electrons present in compounds. So firstly start with what is aromatic compounds. That means कि अगर किसी भी स्पीशीज को हमें एरोमेटिक की फॉर्म में डिफाइन करना है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए. तो स्टार्ट विद एरोमेटिक स्पीशीज. तो व्हाट इज एरोमेटिसिटी. अगर एक बेंजीन को सिंपल एक एग्जांपल लिया जाए तो बेंजीन के जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं ये हर एरोमेटिक कंपाउंड में हमें मिलेगा. तो फोर पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक शुड हैविंग aromatic structures. That means first one is aromatic compound should be cyclic. Second one is aromatic compound should be planar. Planar means all possible atoms present in ring should having sp2 hybrid state. sp2 hybrid state है तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर प्लेनर ही होगा. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड शुड बी प्लेनर. सेकंड पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड शुड बी cyclic. Third and important point related with aromaticity of species. Compound should be conjugated or resonating. तो what is conjugation? Conjugation means alternative position पे अगर pi electrons मिलते हैं तो compound conjugated होगा और conjugated structures having resonating properties. तो just like benzene, first position having pi bond, third position also having pi bond and that pi bond repeated on position number 5. So this benzene structure having pi electrons, bonded pair of electrons on alternative position, that means कि compound should be resonating. अब देखिए कि अगर हम conjugation और resonance के nature की बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन 1 से डिलोकलाइज होकर आएगा थर्ड पोजीशन पे. इट शुड डिलोकलाइज ऑन 3 to 5 एंड लास्टली इट आल्सो डिलोकलाइज फ्रॉम 5 to 1. दैट मीन्स कि अगर इनिशियल देखा जाए तो फर्स्ट पोजीशन से आप पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज कर रहे हो और ये वापस एक रिंग फॉर्मेशन करके फर्स्ट पोजीशन को ही गेन कर रहा है. तो दैट विल बी नेम्ड एज कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और इन सिंपल वर्ड्स pattern of resonance is cyclic around the nucleus of compound. तो should be conjugated, should be resonating और resonance का जो pattern यहाँ पे अचीव करना है it should be cyclic. तो first point should be cyclic, should be planar. Third one is conjugated or resonating or having complete delocalization of pi electron. That means in easy words cyclic resonance is possible due to presence of pi electrons. And most important condition which should follow by any aromatic species, all aromatic structures should follow Huckel rule. Huckel rule, that means कि any structure which is named as aromatic should having 4n plus 2 pi electrons, where n is 0, 1, 2, 3. Pi electrons are 2, 6, 10, 14, etc. So that means फोर पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक. कोई भी स्पीशीज अगर इनको फॉलो करेगा तो ही इसको हम क्या डिफाइन कर पाएंगे, एरोमेटिक. तो व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, आई होप आप समझ पाए होंगे. अब इसी से रिलेटेड दूसरा पॉसिबल वेराइटी आता है विच इज एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर. तो व्हाट इज एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज डिफरेंस इन दिस फ्रॉम एरोमेटिक बिहेवियर. तो लाइक सिंपल एग्जांपल साइक्लोब्यूटाडाइईन. If this compound is anti-aromatic, having four possible characteristic property. First property should be compound should be cyclic. Second one, compound should be planar. Planar है तो सारे कार्बन एटम जो भी आपके रिंग फॉर्मेशन में है they all are sp2. Like aromatic compounds, compound should be resonating or conjugated. And also like aromatic compound, resonance is cyclic or complete delocalization of pi electrons is there.
4 possible condition which is different from aromatic behavior. Aromatic compounds में 4n+2 pi electrons थे, but anti-aromatic compounds having 4n pi electrons. n के मल्टीपल में अगर pi electrons है, that means कि pi electrons are 4, 8, 12, 16 and so on. तो all 4 properties should belongs to anti-aromatic structure. कोई भी कंपाउंड इन चारों को फॉलो करेगा तो डेफिनेटली उसको हम क्या नेम दे पाएंगे, एंटी एरोमेटिक. तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर, सेकेंडली इज एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर, एंड थर्ड एंड लास्ट पॉसिबल साइक्लोस्ट्रक्चर्स आर नॉन एरोमेटिक बिहेवियर. तो इस एग्जांपल को अगर एक नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर हम बोलें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कंपाउंड शुड बी साइक्लिक. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, कंपाउंड इज नॉन प्लेनर. Aromatic compounds are planar, non-aromatic compounds are planar, but these non-aromatic compounds are non-planar because both the carbon atoms having single bond, that means hybrid state is sp3. और नॉन प्लेनर का मीनिंग भी होता है कि अगर आपके रिंग फॉर्मेशन में एक भी sp3 हाइब्रिड एटम है तो स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे नॉन प्लेनर है. अब देखें कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, नॉन प्लेनर होना चाहिए. नॉन प्लेनर का मतलब रिंग में कोई भी एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा. अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम क्या इम्पैक्ट शो करेगा रेजोनेंस की कंडीशन में, उसको एक बार देखते हैं. तो कंपाउंड इज कॉन्जुगेटेड in terms of pi bond, where first position having pi bond and pi bond repeats on position number 3 also. तो conjugation है, that means कि compounds can show is resonance. Resonance means delocalization of pi electrons. तो इलेक्ट्रॉन कैन डिलोकलाइज ओवर 1 to 3, दैट मीन्स कि इस क्राइटेरिया में रेजोनेंस होगा. तो रेजोनेंस आपके फर्स्ट पोजीशन से प्रोपोगेट होके यहाँ तक पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन शो कर रहा है. बट ये दोनों जो आपके कार्बन एटम हैं इनमें रेजोनेंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. फर्स्ट रीजन कि एक तो इनके पास कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. सेकेंड रीजन है कि ये नॉन प्लेनर है और नॉन प्लेनर एटम कभी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते. तो आप ये कह सकते हो कि जो दो sp3 एटम हैं इनकी वजह से जो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो साइक्लिक पैटर्न रेजोनेंस का है वो डिस्टर्ब होता है. और इसी तरह की स्पीशीज को हम क्या नेम दे पाते हैं, नॉन एरोमेटिक. फिर इनमें हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करने का नीड नहीं होता. तो नॉन एरोमेटिक बिहेवियर इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट द सेम. अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस भी आते हैं जो नॉन एरोमेटिक रहेंगे, लेकिन उनमें जो अभी हमने डेफिनेशन लिया था उससे थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन बनता है. तो लास्टली सम स्पेशल केसेस फॉर नॉन एरोमेटिक स्पीशीज. तो इसके लिए हमने सिंपल दो एग्जांपल लिए. वन इज रेडिकल एनायन एंड अदर इज रेडिकल केटायन. नेगेटिव चार्ज, और ये जो स्टार से या डॉट से बनाया जाता है, इट विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी नोन एज ऑड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल. और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ में एक रेडिकल है, दैट मीन्स कि ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अब देखिए कि अगर हम फर्स्ट वाले कंपाउंड या स्पीशीज की नेचर को डिफाइन करें तो पहली कंडीशन, फर्स्ट पॉसिबल केस इज साइक्लिक. सेकेंड पॉसिबल कंडीशन, ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 बिकॉज ऑल आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस. दैट मीन्स कि कंपाउंड साइक्लिक भी है, कंपाउंड इज प्लेनर ऑल्सो ड्यू टू sp2 हाइब्रिड स्टेट. तो जो ये नॉन प्लेनर वाली कंडीशन हमने लिखा था वो यहाँ पे वायलेट हो गया. अब देखें कि कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड विद पाई बॉन्ड एंड दिस ऑड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल आल्सो कॉन्जुगेटेड विद पाई बॉन्ड. दैट मीन्स कंपाउंड आल्सो हैविंग कॉन्जुगेशन ऑफ रेजोनेंस. बट पाई इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर और मे बी ऑड इलेक्ट्रॉन विच इन्वॉल्व इन रेजोनेंस which can delocalize one atom to other are named as pi electron. So negative charge on carbon is equal to lone pair. Bonded pair में total shared electrons are 2 और एक unpaired electron ये भी है. तो overall pi electrons जो resonance में आपके involve हैं it is 5 और 5 that means कि यहाँ पे किस तरह का number आप pi electrons का achieve कर पा रहे हो, odd. Second species also cyclic. All possible atoms are involved in resonance. That means कि species is planar also, having conjugation, so having resonance also, but pi electrons.
2 pi electrons in bonded pair and 1 pi electron in free radical. That means कि overall pi electrons are 3. और अगेन देखा जाए तो ये 3 किस डिजिट से मैच करता है? ऑड नंबर से. तो अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर इन दोनों को करें कि इनका बिहेवियर क्या है, दीज आर एरोमेटिक स्पीशीज, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक. तो कंपाउंड प्लेनर है, बट एरोमेटिक स्पीशीज शुड हैविंग 4n plus 2 pi electrons and anti-aromatic species should having 4n pi electrons. 4n plus 2 हो या 4n हो, that means कि जो भी आपके pi electron का डिजिट एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में आता है, it should be in even number. बट यहाँ पे इन केसेस में pi electrons किस डिजिट को बिलोंग कर रहे हैं? ऑड नंबर्स. तो ऐसे केसेस, ऐसे स्पीशीज जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ pi electrons होते हैं, इनके नेचर को भी हम एरोमेटिक और एंटी में डिफाइन नहीं कर पाते. दे बिलोंग्स टू सिंगल नेम बिहेवियर, दैट विल बी नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स. तो इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस्ड एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रेजो. नॉर्मली इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्रिएट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और रेजोनेंस एक वास्ट टॉपिक होता है जिसको समझने के लिए इन छोटे छोटे डेफिनेशंस को अपने को समझने का नीड भी है. तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. कोई स्पेशल टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड. वो टॉपिक डेफिनेटली कुछ अगले लेक्चर्स में इन्वॉल्व होगा. ये यूट्यूब चैनल जो है मेरा, ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लेक्चर मिलेगा. इनका कोई फीस नहीं है, ताकि हम घर पे जो अपना पढ़ाई इस पेंडेमिक की वजह से रुका हुआ है, उस सबको हम थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करें. तो अगेन सब लोग सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अपने आसपास वालों को सेफ रहने के लिए अवेयर भी कीजिए. ऑल दी बेस्ट. अगले लेक्चर में.